So hello students, very important day for today because CSES phase 3 of Delhi University of Delhi will open today. So allocation के कुछ rules हैं, बहुत important है, समझो. आज open होगा allocation. So rules are very important so that you do not miss out any important thing कि allocation के बाद आपने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया और कहीं प्रॉपरली आपने एक्सेप्ट नहीं किया सीट या फ्रीज या अपग्रेड ऑप्शंस, बहुत कुछ है. तो ध्यान से इस वीडियो को देखो और समझो. लेट मी वेरी क्विकली आपको दिखा रहता हूँ जो प्रेस रिलीज था. एक बार ये डेट्स भी देख लो. और मैंने बोला भी हुआ पहले भी वीडियो में कि आपको हर रोज़ 2-3 बार यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन पोर्टल या एडमिशन वेबसाइट ज़रूर देखना है. ठीक है. सो 19th of July, yes, this during declaration of first CSES allocation list 5 PM Saturday July 19. और ये जो विंडो है एक्सेप्ट करने का, this will be till July 22, sorry, till July 21 Monday. So candidates to accept the allocated seat 5 PM Saturday July 19 आज से शुरू होगा till 4:59 PM Monday July 21 तक आप ये एक्सेप्ट कर सकते हो. ठीक है ना. और then college to verify and approve the online applications that will be from Saturday July 19 to Tuesday July 22. फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस, ये डेट्स हैं. डिस्प्ले ऑफ वेकेंट सीट्स July 24. तो काफ़ी एक्टिविटी वाले अपकमिंग डेज हैं. यू हैव टू स्टे ट्यून विद दीज वेबसाइट्स क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पोर्टल में आएगी. तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको. ये अच्छे से पढ़ लो. राइट. चलिए फटाफट समझ लेते हैं एलोकेशन की कंडीशंस, रूल्स. The highest possible preference will be provisionally allocated to a candidate considering the following criteria: program specific merit, category, availability of seats. The merit list of the unreserved category seats will comprise of all candidates in order of merit. No one will be excluded from the same. In other words, the merit list for the unreserved category will also include other categories irrespective of category if they meet the criteria of merit for the unreserved category. So ऊपर से most preferred होगा unreserved category और लिस्ट जो हो वो कॉमन है. ठीक है ना. मोस्ट प्रेफर्ड कोर्स ऊपर से, जैसे ये तो हमने डिस्कस किया हुआ बहुत बार. सीट एलोकेशन, एडमिशन, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट. ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द एलोकेशन रिजल्ट्स द कैंडिडेट मस्ट लॉग इन टू हिज हर dashboard for acceptance of the allocated seat if offered. Once a seat has been allocated in a particular round, the candidate must accept the allocated seat before the last day time specified for the given allocation round. ध्यान से समझते रहो. Inactivity, no action will be taken as non-acceptance to the allocated seat. It will be treated as decline to the provisionally allocated seat and the candidate will no longer be able to participate in the subsequent regular allocation rounds of CSES U 2025. तो accept तो करना ही है अगर allocate होता है, क्योंकि then देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, मैंने बोल भी लिया, सुन भी लिया. ठीक है. उसके बाद advice to participate in subsequent rounds, candidate must accept the allocated seat within the stipulated time. आपको accept तो करना ही करना है. आपको जब allocation होता है तभी आप अपग्रेड के लिए subsequent rounds के लिए आप एलिजिबल रहोगे और पार्टिसिपेट कर सकोगे. ऑनलाइन अप्रूवल बाय द कॉलेज. उसके बाद once the candidate accepts the provisionally allocated seat, the concerned college will verify the eligibility and documents uploaded by the candidate online on the CSES portal. The college will verify the following within the stipulated time. मिनिमम एलिजिबिलिटी ये कॉलेज का काम. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कॉलेज का है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट मैपिंग सही किया हुआ है नहीं किया हुआ है. ठीक है. वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द ऑनलाइन अप्रूवल प्रोसेस. इफ द कॉलेज सीक्स मोर क्लैरिटी from the candidate, it may raise a query to the candidate. After verification, the college will either approve or reject the provisionally allocated seat of the candidate. No application will be left unattended by the college. तो कोई टेंशन नहीं है. कुछ भी गड़बड़ होगा आपको बताते रहेंगे. कुछ भी रीजन होगा पोर्टल में, मैं बार बार कह रहा हूं, अब नेक्स्ट फ्यू डेज जो एक्टिविटी रहेगी आपको पोर्टल पे रेगुलरली विजिट करते रहना है. 2, 3, 4, 5, 10 बार. कोई टेंशन नहीं है. अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट फेज है. राइट. In case of approval, once the college accords the approval, the candidate will have to pay the admission fee within the stipulated time. ठीक है. फी और वो रिफंड ऑप्शंस भी हैं. कोई टेंशन नहीं. पे बहुत ही नॉमिनल होता है अमाउंट. रिफंड भी आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर कल को आपको विथड्रॉल करना है, जो भी है. राइट. In case of rejection, at the time of online verification, if an application gets rejected, the college will state the reason for rejection. For rejecting an application, the college will indicate any of the following reasons: non-fulfillment of the minimal eligibility, या non-fulfillment of the program-specific eligibility,
नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया, इनवैलिड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सबमिट बाय द कैंडिडेट, फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी रेज्ड बाय द कॉलेज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो ध्यान रहे पोर्टल में रेगुलरली विजिट करते रहना, वहीं है सब कुछ, सॉल्यूशंस वहीं पर पड़े हुए हैं, ठीक है। एडवाइस कैंडिडेट, ये देखो ये सीसेस के डॉक्यूमेंट से है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ऑफिशियल, सब कुछ ऑफिशियल होता है। यस, हमें अच्छे से जनरली पढ़ना चाहिए, बट एनी हाउ एडवाइस कैंडिडेट्स मस्ट रेगुलरली चेक देयर डैशबोर्ड एंड रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज इफ एनी रेज्ड बाय द कॉलेज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन respond to queries if any during approvals by college department center. During the online application process, if a college raises queries, then it must respond online through the candidate's dashboard within the stipulated time. Failure to respond to the queries will lead to rejection. Candidate must make the payment well in time and not wait for the last date. क्योंकि पोर्टल है, काफ़ी लाखों स्टूडेंट्स हैं, ट्रैफिक होता है पोर्टल में। Admission to provisionally allocated seat. After the college accord its approval, the candidate will have to pay the admission fee for the approved seat. The admission process will be treated as complete only after successful payment realization of the admission fee. If a candidate fails to pay the admission fee within the stipulated time, it will be considered as a cancellation of the provisionally allocated seat. The candidate will forfeit all the rights to the allocated seat and will not be considered for any subsequent regular allocation rounds. समझ में आ रहा है? तो fee पे करना है. Subsequent allocation rounds based on the availability of seats that arise due to rejections, cancellation and withdrawals, the university may announce multiple allocation rounds. तो अभी सेकेंड राउंड के बारे में तो प्रेस रिलीज में है ही, आप देख सकते हो। उसके बाद भी हो सकता है अगर सीट्स हैं, ये यूनिवर्सिटी का डिसीजन है। स्पॉट राउंड, ठीक है, सब कुछ होता रहता है। ये आपको टेंशन नहीं लेना है अगर फर्स्ट लिस्ट में एलोकेशन नहीं हुआ है। यू हैव टू स्टे कोर्स, स्टे पेशेंट। हो जाता है एलोकेशन, कभी कभी हो जाता है, बहुत लेटर स्टेज में भी हो जाता है, एक्सपीरियंसेस हैं। कैंडिडेट्स हु वर एलोकेटेड द फर्स्ट प्रेफरेंस इन एनी राउंड विल नॉट बी कंसिडर्ड इन सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ एलोकेशन। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस आ गया तो वहाँ पर आपको बस एक्सेप्ट करना है और फी पे करना है, और जब कॉलेज का प्रोसेस है आप सब्सिक्वेंट राउंड में फिर आगे नहीं कंसिडर किए जाओगे, ठीक है। कैंसलेशन प्रोविजनल एलोकेटेड सीट एडमिशन, फेलियर टू एक्सेप्ट द प्रोविजनल एलोकेटेड सीट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन will lead to the cancellation. The provisionally allocated seat will be cancelled if a candidate fails to pay the admission fee. Failure to respond to the queries, ऐसे in all these cases cancellation हो सकता है. The provisionally allocated seat admission will be cancelled if at any time any of the documents are found to be invalid, fraudulent. The provisionally allocated seat admission will be cancelled if at any time it is found that candidate does not meet the minimum eligibility criteria. A candidate whose provisionally allocated seat admission is cancelled due to the above mentioned reasons will forfeit the right to seek admission to University of Delhi. तो ये सारे रूल्स हैं। अपग्रेड ऑप्शन, ठीक है, वंस एलोकेशन हो गया आपने एक्सेप्ट तो करना ही करना है, वो मैंने समझा दिया। अपग्रेड, एन एडमिटेड कैंडिडेट कैन सिलेक्ट द अपग्रेड ऑप्शन। करंट एडमिट सीट विल बी ऑटो कैंसल्ड इफ न्यू प्रेफरेंसेस आर एलोकेटेड। अगर अपग्रेड के बाद नई प्रेफरेंस एलोकेट होती है तो जो करंट एलोकेशन होगा वो कैंसिल होगा, ठीक है। नहीं होता है तो पुराना ही रहेगा, टेंशन नहीं है, आप अपग्रेड कर सकते हो ऊपर वाले प्रेफरेंसेस को। कैन ऑल्सो रीऑर्डर द प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन दैट वर हायर इन प्रेफरेंस देन द एलोकेटेड वन। रीऑर्डर भी कर सकते हो, ठीक है ना। अपग्रेड ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट हु वाज एलोकेटेड हिज हर फर्स्ट प्रेफरेंस। जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला उसको अपग्रेड नहीं होगा, ठीक है। ये भी आप सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। कैंडिडेट हु गेट्स अपग्रेड विल हैव टू एक्सेप्ट द अपग्रेडेड सीट। तो अगर अपग्रेड हुआ तो फिर अपग्रेड सीट लेना ही होगा, विच मीन्स पुरानी सीट चली जाएगी। तो सोच समझ कर अपग्रेड, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद अ पर्टिकुलर सीट, परफेक्ट, उसको फ्रीज करो, फी पे करो और कॉलेज के सेशन का वेट करो स्टार्ट होने का। Program college combinations which were below in the preference order at which the candidate had taken admission earlier will never be offered again to the candidate in any subsequent evaluation. ये भी डिस्कस किया हुआ है, reinforce करना जरूरी है। If a candidate chooses upgrade option and a new preference is allocated to him her as per the allocation policy, his current seat on which he was currently admitted will be auto cancelled. In such a case, his acceptance to the upgrade seat will be auto accepted. And the fees will be auto adjusted in case a candidate gets upgrade and the admission fee of upgrade seat is more than the already deposited fees. The candidate will have to pay the differential amount within the stipulated time, ठीक है, right? Otherwise upgrade seat will be cancelled. तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, ध्यान से समझ कर, टेंशन लेना। एक्साइटमेंट में क्या था ना, वंस यू गेट अ एलोकेशन तो कभी कभी एक्साइटमेंट होता है तो गलतियां हो जाती हैं। तो ये ना हो कि इन सिली एरर से, अनफॉर्चुनेट इन एरर से कुछ आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाए। फ्रीज, कैंडिडेट हु हैज टेकन एडमिशन इन एलोकेटेड सीट एंड डिजायर्स टू कंटिन्यू विद इट शुड सबमिट अ फ्रीज। जैसे मैंने कहा, सोच समझ के अपग्रेड, बिकॉज अगर आपने अपग्रेड ऑप्शन किया तो और अपग्रेड हो गया तो पुरानी सीट गई, फिर गई, फिर आपको नए वाली सीट, और अगर अपग्रेड होता है
तो आपको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और अगर अपग्रेड नहीं होता तो पुरानी सीट रहेगी, उसकी भी टेंशन नहीं है, ठीक है। It should submit a freeze request to its dashboard. On selecting the freeze, such a candidate will be never be allowed to opt for. तो एक बार freeze हो गया तो freeze. Candidates must freeze their admission only if they are satisfied with the allocated seat and not want to be considered for subsequent allocations. ठीक है. Once the freeze option has been exercised, the candidate will not be allowed to upgrade. ठीक है. Freeze के बाद no upgrade. Candidates opting for neither upgrade nor freeze. ठीक है. अभी सोच ही रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है. If an admitted candidate neither opts for upgrade nor freeze and remains inactive, the admission taken by him will be retained and will not be considered for upgradation. तो जो एडमिशन था वो ही रहेगा, तो उसकी भी टेंशन नहीं. तो बहुत अच्छे से कर दिया. कभी कभी आपको बताना होता था कि आप बताइए अपग्रेड करना है, फ्रीज करना है, गलती से स्किप हो गया तो कोई टेंशन नहीं. अगर स्किप भी हो गया, कुछ अपग्रेड भी नहीं किया, फ्रीज भी नहीं किया, तो जो ऑलरेडी एलोकेटेड है वो रिटेन्ड हो जाएगी. ठीक है जी. विड्रॉल ऑफ एडमिशन बाय द कैंडिडेट, तो एक बार एडमिशन हो गया, कोई और ऑप्शन अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी या कुछ भी रीजन हो सकता है, तो ये विड्रॉल ऑप्शंस भी आप देख लीजिएगा. कैंडिडेट हु हैज टेकन एडमिशन इन अ प्रोग्राम बट विशेस टू विड्रॉ फ्रॉम इट कैन डू सो बाय सेलेक्टिंग द विड्रॉ ऑप्शन, पेइंग ए विड्रॉल फी ऑफ 1000 रुपीज. तो बहुत नॉमिनल अमाउंट्स है, ठीक है, ये भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है ना, पढ़ लीजिए आप. The entire admission process for UG program is online. Therefore, any request sent through other means for withdrawal will not be entered. So, online portal. Mid-entry, ये बहुत important है. Through the provision of mid-entry, the candidates who either fail to apply for CSAS 2025 within the stipulated time during phase 1 or could not complete phase 2 and are desirous of participating in CSAS 2025 can participate as and when announced by the university. Such a candidate can do so by paying a मिड एंट्री फी. देखो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ये भी ऑप्शन देता है कि अगर आप मिस कर गए, मिड एंट्री विल नॉट बी अलाउड फॉर ECA, स्पोर्ट्स, अदर सुपरन्यूमरी कोटास, ये भी समझ लीजिएगा. स्पॉट एडमिशन, कभी कभी रेगुलर राउंड्स के बाद अगर सीट्स रिमेन वेकेंट तो स्पॉट राउंड्स भी होते हैं. ठीक है. सो कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर CSAS बट आर नॉट एडमिटेड टू एनी कॉलेज और डिक्लेरेशन ऑफ द स्पॉट एडमिशन राउंड कैन पार्टिसिपेट इन ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन. तो कर सकते हो अगर आपने CSAS पोर्टल में है ना अप्लाई किया हुआ है. ठीक हो गया. टाई ब्रेकिंग रूल्स डिस्कस कर चुके हैं. फिर भी इवेंट ऑफ ए टाई देयर आर 2 मोर कैंडिडेट्स से सेम CUT स्कोर्स. ठीक है. द फॉलोइंग रूल्स, द कैंडिडेट विद द हायर परसेंटेज ऑफ बेस्ट ऑफ 3 इन 12th वो भी अगर सेम है, द कैंडिडेट विद द हायर परसेंटेज ऑफ बेस्ट ऑफ 4 वो भी सेम है, तो 12th में बेस्ट ऑफ 5 वो भी सेम है. तो फिर एज पे टाई ब्रेकिंग होगा. अर्लियर डेट ऑफ बर्थ विल बी गिवन राइट एज, उसको प्रेफरेंस मिल जाएगा, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द अर्लियर डेट ऑफ बर्थ. अगर वो भी सेम है, इतने कॉन्सिडेंसेस, देन कैंडिडेट विल द हाई परसेंटेज ऑफ 10th, तो 10th के मार्क्स को फिर फाइनली वो टाइप ब्रेक किया जाएगा. ठीक है. ओके. मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एट द कंक्लूजन ऑफ CSAS ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स मस्ट रिपोर्ट टू द एडमिटेड कॉलेज डिपार्टमेंट एंड कंप्लीट ऑल admission formalities of the concerned college department center including physical verification. Admission of candidate is purely provisional and is subject to verification of original documents college में जाकर by the respective college department. The college will recheck all the documents during physical verification. If any document certified is found inadequate, insufficient, inappropriate, it will lead to cancellation. ठीक है. Further, such a candidate will forfeit the opportunity for admission to any UG programs. ठीक हो गया, ये भी समझ में आ गया. चलिए, ये फिर कॉलेज में जाकर. उसके बाद एडमिशन टू माइनॉरिटी कॉलेजेस. माइनॉरिटी कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल्सो. सिख एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स, 6 माइनॉरिटी कॉलेजेस, 50% सीट्स आर रिजर्व्ड. ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड, 50% ऑफ सीट्स फॉर कैंडिडेट्स बिलोंग टू द अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड 50% आर रिजर्व्ड फॉर माइनॉरिटी. तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी में जीजन मैरी एंड सेंट स्टीफेंस. सिख माइनॉरिटी में माता सुंदरी, श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज. ये 4 कॉलेजेस सिख माइनॉरिटी के. ठीक है. ओके. एडमिशन ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इन स्पोर्ट्स सुपरन्यूमेरी कोटा. द ऑप्शन टू अप्लाई अंडर स्पोर्ट्स ECA सुपरन्यूमेरी कोटा इज अवेलेबल ओनली अंडर phase 1 of this. After submission of CSAS application fee, no options will be made available to the candidate to apply under sports if not registered under the same early. ठीक है. ये भी होगा. इसका भी CSAS डॉक्यूमेंट को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ.
ये है सीसेस डॉक्यूमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एडमिशन वेबसाइट पे है, ये पढ़ लीजिएगा। एडमिशन टू बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है, सीसेस डॉक्यूमेंट है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एडमिशन ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्पोर्ट्स न्यूमेरिक कोटा, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोटा, कौन कौन सी थिएटर, ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो भी इन कैटेगरीज में हैं, राइट। सर्टिफिकेट, मार्किंग स्कीम, क्राइटेरिया सब लिखा हुआ है सारा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बस बहुत कुछ है, तो इट इज़ एडवाइस, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर है, ये सीसेस के डॉक्यूमेंट में है, सर्टिफिकेट, मार्किंग, एनसीसी कैटेगरी, ये सब दिया हुआ है, अच्छे से आप देख लीजिएगा। यू शुड डेफिनेटली एडमिशन अदर सुपरन्यूमेरी कोटास, कश्मीरी माइग्रेंट्स, ऑफन्स कोटा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड कोटा, ठीक है, राइट, ये आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एलोकेशन। आई होप आपको अच्छा एलोकेशन मिले। ऑल द बेस्ट बच्चों, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।